Hello guys, welcome to Cracku. In this video, I'll be guiding you how to fill a CMAT form. हम लोग सब details बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे, then we'll fill it together, okay? So stick with me till the end. Let's get started. पहले हम लोग अभी registration date देखते हैं CMAT का. So the registration has started on October 17, 2025 and the last date of the registration is November 17, 2025, 11:50 p.m. मेक दैट रिमाइंडेड, ये लगा लो अपने बोर्ड्स में चिपका के, कहीं नोट में चिपका के लगा दो. अभी लास्ट डेट फॉर द फी पेमेंट इज November 18, 2025, 11:50 p.m. एंड करेक्शन विंडो भी है हमारे CMAT में which is on November 20 and 22, 2025, okay? And the admit card release date is on, okay, हमको पता नहीं है, to be announced, this all are to be announced, and the duration for CMAT is for 3 hours. The language is English, and this is very important, guys. This official website for CMAT is very important. Note this in your notes, in your notebook, something like that, okay? So अभी हम लोग exam pattern देखते हैं. Talking about the sections, we have quantitative techniques, data interpretation, language comprehension, innovation and entrepreneurship was optional in 2022, but now it is mandatory from 2023. And logical reasoning and general awareness. Questions in CMAT exam, total questions will be 100 and each section has 20 questions, which is multiple choice questions. And exam duration, as we already talked about, 3 hours, 180 minutes, and there is no sectional time limit. Total marks will be 400 marks and plus 4 for each correct answer. And let's talk about the marking scheme now. As we already said, there was plus 4 for each correct answer and minus 1 for the wrong answer. So, अभी form fill करने के लिए what should we do? Go to Google and search for CMAT 2026. आप जब ये search करोगे ना Google में CMAT 2026, you will get this link. This is the official link for CMAT 2026. Okay, just click onto this. Now, when you click onto this, you'll get this page. And now अभी हम लोग देखते हैं कि application form कैसे भरना है, ठीक है? After you get this page, you need to click here, candidate activity, registration for CMAT 2026. It's clearly written here, you have to click it here. After that, you'll get this page. This is for download information bulletin, this is for new registration and login. So अभी हमको कौन सा पेज में जाना है? New registration. So when you get into this, just click on this new registration. After you click on this, you'll be directed to this page. So अभी यहाँ पर हमको registration fees देखना है, मतलब form filling का fees कितना है. So talking about general, which is male, it is for 2,500, and for general female and the third gender, it is for 1,250. ठीक है? Now talking about OBC, NC, ST, and general EWS, PWD, for male, it is same as general female, which is 1,250, okay? And for the female and the third gender is also 1,250. After that, here you'll have the guidance, key, what should you do and what are the steps. Let me tell you, the steps are, first is the registration. We have to register, then we have to fill in the application form, and the fee payment obviously is the last step. So let's move forward. After you read all the instructions that are given, you will get this consent declaration or something like that. So after you read it all, you have to click here that I've downloaded all of this and your consent is there, something like that. So click here to proceed. After you have done that, you'll be redirected to this page. Okay, now let's get started. First, you need to fill in your name, which is same as your Aadhaar card. I'm mentioning this again, guys. Same as your Aadhaar card, ठीक है? And उसके बाद your father details, then your mother details, and your date of birth. First the day, month, and a year. Gender में there will be 3 options: male, then female, then the third gender, ठीक है? तो उसमें आप लोग को select करना है.
फिर उसके बाद द पर्सनल डिटेल्स कंफर्मिंग द कैंडिडेट, आपको फिर से वो फॉर्म भरना पड़ेगा। एंड आई एम रिमाइंडिंग यू दिस अगेन, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप फिर से टाइप करना, ठीक है। तो फिर से एक बार टाइप कर दो यहाँ पे फादर का, मदर का, योर डेट ऑफ बर्थ एंड द जेंडर। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज डन, इट इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस एज इन योर रेसिडेंशियल एड्रेस, क्योंकि मतलब अभी आपका परमानेंट एड्रेस कहीं का होगा, रेसिडेंशियल एड्रेस कहीं का होगा। सो प्रेजेंट एड्रेस वहाँ पर डालना है, आपका नाम, फिर सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड द पिन कोड। एंड किसी का प्रेजेंट एड्रेस एंड द परमानेंट एड्रेस आर सेम, किसी का नहीं होता है, तो जिसका नहीं है यू हैव टू पुट इन योर ईमेल एड्रेस। आफ्टर यू पुट इन द ईमेल एड्रेस यू हैव टू confirm it, then your mobile number, ठीक है। फिर से मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना पड़ेगा एंड दिस इज अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। आप अपनी मम्मी का दे सकते हैं, पापा का दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं। आफ्टर यू हैव डन दिस you will be redirected to this page. As I was telling कि सबका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं होता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप ये क्लिक करेंगे तो फिर वो रीडायरेक्टेड हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको फिर से भरना पड़ेगा कि विच इज़ योर नेम, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड योर पिन कोड। फिर उसके बाद यू हैव टू चूज़ योर पासवर्ड। पासवर्ड ऐसा रखना बच्चों कि आपको याद रहे, या अगर याद नहीं है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख रहे तो व्हेन यू सेट द पासवर्ड जस्ट कीप इट इन योर नोट, ठीक है। तो वो कर लेना, कंफर्म, पुट इन योर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या है? सिक्योरिटी क्वेश्चंस में क्या होते हैं ना कि योर फेवरेट स्पोर्ट, योर फेवरेट कलर और समथिंग लाइक दैट, जो सिर्फ आपको पता हो और किसी को ना पता हो, ठीक है। तो वो होता है। फिर यू हैव टू पुट इन द कैप्चा। फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये सब होने के बाद सबमिट करना है। आफ्टर यू हैव डन दैट यू विल गेट दिस एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सबमिट। ये ना रिव्यू पेज होता है, आपने जो ये सब भरा ना पहले उसका रिव्यू होता है, तो आपको फिर से डबल चेक करना पड़ेगा कि आपका नाम सही है कि नहीं है, आपका मम्मी का नाम, आपका पापा का नाम एंड द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। दैन द प्रेजेंट एड्रेस यू हैव टू डबल चेक एवरीथिंग। डबल चेक करो, सब डबल चेक करो, एवरीथिंग डबल चेक होने के बाद दिस इज द परमानेंट एड्रेस का ना, ये डबल चेक हो गया है, सब डबल चेक करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद यू विल गेट दिस पेज, देन यू हैव टू टिक इन ऑल ऑफ दिस कि सब करेक्ट है कि नहीं। सब करने के बाद यू हैव टू, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट द OTP। अभी when you say yes no you will get an OTP on the registered mobile number, I mean the number you have put in, तो उसमें OTP आएगा। तो when you do yes and I agree and submit and get the OTP, verify mobile number, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो मोबाइल नंबर आपने डाला है ना उसमें आपको OTP आएगा। OTP आने के बाद you have to put in, suppose the OTP is, we'll just assume 6 7 8 9 and 4 0, so it's like 6 digit OTP आएगा, तो हमको वो डालना है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक इन ऑन दिस सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नाउ लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी ये हो गया ना, अभी ये होके रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ कंप्लीटेड, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं किया है, फी पेमेंट नहीं किया क्योंकि अभी भी इनकम्प्लीट बता रहा है। उसके बाद यू हैव टू क्लिक इन दिस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद इज दिस यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इज कंप्लीटेड बिकॉज हम लोग ने पहले ही अपना OTP भी आ चुका है। नाउ लेट्स मूव इन टू द पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। अभी पर्सनल डिटेल में फिर से कैंडिडेट्स नेम एंड ऑल ऑफ दैट यू हैव टू फिल इन योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर जेंडर एज अ फीमेल, ठीक है, मैंने फीमेल लिख दिया है। एंड नाउ योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम एंड योर नेशनलिटी। यहाँ पर इंडियन आएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लो अपना, कैटेगरी जनरल, EWS, ST, SC सब आएगा यहाँ पर, ठीक है। यू हैव टू सिलेक्ट योर्स। कंफर्म कैटेगरी फिर से एक बार कंफर्म करना है। नाउ दी आर यू अ PWD कैंडिडेट, डू यू हैव अ बेंच मार्क डिसेबिलिटी। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं देन यस, अगर नहीं है तो नो ऑब्वियसली।
ठीक है। ये होने के बाद आर यू डायबिटिक, अगर आपको डायबिटीज़ है तो यू हैव टू क्लिक इन येस एंड नो, ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम, यू हैव टू एड योर एनुअल फैमिली इनकम, तो आपको ये ऐड करके देन देयर इज अगेन कैप्चा, यू हैव टू ऐड दिस 3E5822. After you do that, save and next. ये select करके you will be redirected to this page now. वो क्या है, हमारा contact details and personal details हो चुका है। अभी this is identify details. वो क्या है कि choose identity. यहाँ पर when you choose no, you will have a lot of options like आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID की कौन सा identity details आपको चाहिए। मैंने यहाँ पर आधार कार्ड दिख गया, लाइक विच इज़ वेरी ऑप्शनल, लाइक सब लोग वही चूज़ करते हैं, राइट। नाउ दिस ऑप्शन, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, जो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, CMAT का एप्लीकेशन जो नंबर है, इट विल बी हियर। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। आपको जब OTP जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, तो आपको वो डालना है यहाँ पर, ठीक है। देन द कैंडिडेट्स नेम यू हैव टू पुट इट इन अगेन। फिर आधार कार्ड नंबर, जो आपका नंबर होता है आधार कार्ड का, यू हैव टू पुट इन हियर एंड कंफर्म इट। आफ्टर दैट अगेन, ठीक है, सबमिट नेक्स्ट। ये हो जाने के बाद यू विल हैव अ सिटी चॉइस विच इज अप्लाई फॉर एन सिटी एंड सेंटर डिटेल्स। सेंटर कहाँ का, दो, सो देर आर 4 सिटी चॉइसेस, वी हैव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. So first the applying for CMAT, and the first city choice is Telangana, which is after you do the state, यहाँ पर district भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो तेलंगाना, then Hyderabad, Karnataka, Bengaluru, West Bengal, Siliguri, then city choice 4 is Odisha, Bhubaneswar. अभी फादर्स या मदर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है, फादर का ऑक्यूपेशन एक्चुअली यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते, क्या मतलब आपकी डैड का ऑक्यूपेशन है, इट इज रिटन गवर्नमेंट सर्विस एंड फादर क्वालिफिकेशन विच इज मैट्रिकेट एंड ग्रेजुएट, PhD एंड ऑल ऑफ दैट, इट विल कम हियर व्हेन यू क्लिक ऑन दिस. सो आई हैव डन दिस एंड योर मदर ऑक्यूपेशन यहाँ पर, इफ़ योर मदर इज डॉक्टर, इफ़ योर मदर इज पुलिस ऑफिसर एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, ये डालना है एंड ये डालना है. अभी ये द सेम थिंग, ये होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट. Let's move into the next step. Now comes your qualification details. अब इसके लिए आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन डिटेल्स चाहिए होता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट द क्वालिफिकेशन. यहाँ पर 10th इज ऑलरेडी गिवन, ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर पे पास आउट हुए हो, जस्ट लाइक 2021 और 2022 समथिंग लाइक दैट, ठीक है. नेम ऑफ द एग्जामिनेशन 10 और इक्विवेलेंट वो वहीं पर आ जाएगा. नेम ऑफ द बोर्ड समथिंग लाइक CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड, कुछ भी हो सकता है, आप जस्ट सर्च एंड आपको मिल जाएगा वो, ठीक है. नाउ द रिजल्ट मोड, आपका किस रिजल्ट मोड में है, परसेंटेज एंड CGPA दोनों हो सकता है. देन आई हैव जस्ट क्लिक्ड ऑन परसेंटेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोटल मार्क्स. यहाँ पर आके सबको कन्फ्यूजन होता है कि कितने सब्जेक्ट्स का डालना चाहिए. मेरे तो 6 थे, मेरे तो 7 सब्जेक्ट्स थे, तो क्या करना चाहिए. सो द मार्कशीट यू हैव गॉट इन योर 10th एग्जाम आफ्टर योर बोर्ड्स, जो 10th मार्कशीट है उसमें कितने सब्जेक्ट्स है उसका टोटल डालना है. वो वहाँ पर जितने सब्जेक्ट्स है उतना ही डालना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं. सो द टोटल मार्क्स फॉर आई थिंक फॉर CBSE फॉर 10th बोर्ड्स इज 500. टोटल मार्क्स हो गया. अभी ऑब्टेन मार्क्स, अभी उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं इन ईच सब्जेक्ट का आपको टोटल करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे को ऑब्टेन 4 मिला है विथ कैलकुलेटिंग द एवरी सब्जेक्ट टोटल, ठीक है. तो 400 मिला है, तो मार्क्स कितने होंगे हमको परसेंटेज में 80%. अभी ये कैलकुलेट भी कैसे, अभी ये ना आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा परसेंटेज में, क्योंकि CMAT में व्हेनेवर यू डू दिस आपको ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. व्हाट डू यू मीन इज, आपको सिर्फ टोटल मार्क्स डालना है, ऑब्टेन मार्क्स डालना है एंड ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको. ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा वहाँ पे परसेंटेज कितना है, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 12th बोर्ड्स. 12th में भी वही करना है. ईयर ऑफ पासिंग कितना है, सपोज इन लेट्स से 2024, 2025,
ठीक है। तो उसके बाद परसेंटेज, नाउ द सेम थिंग, टोटल मार्क्स कितने आए हैं, ऑब्टेन मार्क्स एंड द परसेंटेज वो आ जाएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स सेम थिंग, 12th मार्कशीट में कितने सब्जेक्ट्स थे उसका टोटल लेना है। इसमें भी हम लोग अज्यूम करते हैं 500 है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स है, ई सब्जेक्ट्स का 100 है, तो 500 टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स विल जस्ट लेट इट अज्यूम हमको 329 मिला है, ठीक है। तो परसेंटेज कितना आएगा वो आ जाएगा, हम लोग वेल जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आएगा 65.8 समथिंग 8, हाँ ये आ जाएगा। आप लोग मैंने जैसे बोला कि टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। Now talking about the graduation qualification details. Year of passing, we'll just keep it 2025, यहाँ पर 2025, ठीक है। सॉरी गाइस, मैंने 12 में ही 2025 लिखा ना, तो क्या वहाँ पर वो होना चाहिए क्योंकि 2 साल का आपका 12th तक होता है, फिर ग्रेजुएशन होता है ना, तो लेट्स कीप इट 2022, ठीक है। उसके बाद is the name of the examination. For example, BCom, BBA, BSc, वहाँ पर options आएगा, you have to click on that. After that is the course and the stream. In case अगर यहाँ पर नहीं आएगा ना, you have to put in here. For example, BCom, it's like BCom general or BCom honors, something like that. तो यहाँ पर आप course या stream name लिख दो, यहाँ पर BCom H ऑनर्स लिख दो या तो कॉमर्स लिख दो, चलेगा। आफ्टर दैट इज रिजल्ट मोड। यूजुअली ग्रेजुएशन का क्या रहता है, ग्रेजुएशन में इट विल बी CGPA, राइट। तो CGPA में व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, इट इज 10। यूजुअली इन यूनिवर्सिटीज दिस विल हैपन, बट अगर नहीं है आपको डबल चेक करना पड़ेगा आपके यूनिवर्सिटी के मार्क्स शीट से, वो आपको पता चल जाएगा ऑब्वियसली आफ्टर योर रिजल्ट्स कम, ठीक है। तो CGP ऑब्टेन कितना है, सो 10 में लेट्स से 9 एंड आफ्टर यू डू दैट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। फिल इन द कैप्चा अगेन, यहाँ पर हो चुका है, सेव एंड नेक्स्ट। आफ्टर यू डू दैट ये हमारा सब हो गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया है, पर्सनल डिटेल्स हो गया है, आइडेंटिफाई डिटेल्स हो गया है, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर भी हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी हो गया। नाउ द डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या चाहिए रहता है, सेम एज कैट, अपना पासपोर्ट साइज फोटो एंड योर सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन यू डू दैट, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट साइज जिसकी मिनिमम KB साइज इज 10 and maximum is 200 and document format is JPG and JPEG, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपलोड करो, चूज योर फाइल एंड उसके बाद सिग्नेचर ऑल्सो डू द सेम थिंग, इट्स द उसके बाद सिग्नेचर भी सेम थिंग, ओके। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट minimum is 10 and maximum is 50. Now choose a file and you have to upload it here. यहाँ पर जब when you upload the first one, no important point, when you upload the first one, अगर आप लोग दोनों साथ में कर रहे हो तो ये आपको बार बार करना पड़ेगा। आप दोनों साथ में कर रहे हो, फिर से you will be redirected like this, ठीक है। फिर से ये सिग्नेचर वाला फिर से करना पड़ेगा, तो जितनी बार पूछे वहाँ पर उतनी बार भरो, ठीक है। आफ्टर यू हैव डन दिस, यहाँ पर ये आई वाज टेलिंग यू नो, ये 2 चीज़ें आएंगी। जब तक ये नहीं आती हैं आपको भरते रहना पड़ेगा दोनों, सिग्नेचर एंड योर पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। आफ्टर यू हैव डन दिस यू विल गेट दिस, डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली। तो हम लोग लास्ट स्टेप में आ चुके हैं, इट इज़ योर डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, लेट्स सबमिट इट, ठीक है। यस, आफ्टर यू डू दैट यहाँ पर होगा विच इज़ द फाइनल रिव्यू पेज, फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। फिर से रिव्यू आएगा सब चीज़ का, किसका आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स का आएगा, पर्सनल आइडेंटिफाइंग डिटेल्स, सेंटर क्वालिफिकेशन एंड द डॉक्यूमेंट अपलोड, सबका रिव्यू करना पड़ेगा एक एक।
ध्यान से, बारीकी से, ज़्यादा इधर उधर नहीं. You have to be focused and review it properly. Check each and every details with be focused and check it each and every details carefully. Okay. जब ये सब करने के बाद, review it properly, सब करने के बाद close it. ठीक है. जब final submission हो जाएगा, close it. Now the next step. When you do that, you will be redirected to this page again. तो यहाँ पर आपका हो चुका है. नाउ हमारा फ़ी पेमेंट बाकी है. बट फ़ी पेमेंट से सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा. यू हैव टू वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट बिफोर सबमिटिंग. ओके, बिफोर पेइंग द फॉर्म फीस and the application fees, which is the same email ID. You have to reconfirm it. You have to verify it again. So when you click on that register email ID, जो हमने पहले फर्स्ट या सेकेंड स्टेप में जो ईमेल आईडी डाला था, वो ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा. ठीक है. देन यू हैव टू फिल इन दिस कैप्चा H627P8. आफ्टर यू डू दैट, सबमिट एंड गेट OTP. अगर आपको ये ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज योर ईमेल आईडी, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस. ठीक है. आफ्टर यू डू दिस, नो, सबमिट एंड गेट OTP, यू विल गेट एन OTP इन योर ईमेल आईडी, इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. वही 6 डिजिट का ईमेल आईडी में आपको OTP आएगा एंड यू हैव टू पुट इन हियर. ठीक है. लेट्स अज्यूम 6, 7, 8, 9 and 1 and 2. And after this, if you're not getting the OTP, you have to resend the code. ठीक है. अगर आ गया है, you'll put in this and verify. After this is completed, our procedure is completed. Now the only thing remaining is to the fee payment. After this is done, you have to pay the application fee. ठीक है. उसके बाद, सब होने के बाद, यहाँ पर ना एक और ऑप्शन है which is edit application form. अगर if you are not sure, if you want to review it again, go back and review it again. ठीक है. ये होने के बाद we are completed with CMAT 2026 form filling. ठीक है. That's it for today's video. हम लोग ने सब एक स्टेप बाय स्टेप देखा है, बारीकी से चेक किया है, and I hope you are there still. Now guys, if you want a syllabus, the syllabus for CMAT 2026, you can go and Google search Cracku CMAT 2026 syllabus, or just see the description below. It will be mentioned there, the syllabus for CMAT 2026. Okay, so thank you so much for staying with us, and don't forget to subscribe Cracku for more content like this.